Welcome to the next lecture of respiration and circulation. If you remember, in the previous lecture we were discussing about the mechanism of respiration, so we'll continue the same part. If you remember, in the mechanism of respiration we have to discuss four side heading. The first part is breathing, second part is external respiration, third part is internal respiration, and fourth part is cellular respiration. Breathing and external respiration we have already done in the previous lecture. So in today's lecture we have to discuss about the mechanism of internal respiration. First of all, you should know what actually the internal respiration is. What do we mean by internal respiration? Just going to revise, summarize in short. Breathing is the exchange of gas between environment and the alveoli. The amount of gas which we inhale has sufficient amount of oxygen, and the amount of gas which we exhale has sufficient amount of carbon dioxide. So exchange of gas between environment and lung, that is alveoli, is called as breathing. The second part is external respiration. External respiration is the exchange of gas between alveoli and the blood present around the alveoli. Blood present around the alveoli, obviously alveoli is surrounded by numerous fine blood capillaries which is filled with the blood. तो alveoli के अंदर जो गैस है और कैपिलरीज में, alveoli के बाहर जो कैपिलरीज है उसमें जो ब्लड है उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, that is called as external respiration. Then what is internal respiration? Today's side heading is internal respiration. Internal respiration is the exchange of gas between blood and the tissue, that is with the help of transportation is done with the help of blood. So exchange of gas between blood and the tissue is called as internal respiration. Now in the internal respiration we have to discuss about the transportation of oxygen as well as transportation of carbon dioxide. Obviously oxygen will transport from blood to the tissue. ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से टिश्यू में एंटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड में एंटर होगा रिवर्स डायरेक्शन में. तो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हमको पढ़ना है. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा. No doubt, RBC and plasma, they are the component of blood. So blood is a main transporting media. Blood is a main transporting fluid responsible for transportation of oxygen as well as carbon dioxide. Now, in this part, we'll start with the transport of oxygen. Oxygen का transportation कैसे होता है? देखो बच्चों, ऑक्सीजन जब हमने इनहेल किया, जब हवा अंदर गई, हवा हमारे अल्वियोलाई में, लंग्स के अल्वियोलाई में पहुंच गई. अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन था वो डिफ्यूज होकर के कैपिलरीज में आ गया, ब्लड में आ गया. जैसे ये हमारी अल्वियोलाई है, राइट? ये हमारा अल्वियोलाई है. अल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है. तो जो ऑक्सीजन यहां पर था, जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई में था, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किधर आ गया? कैपिलरीज में आ गया. ये तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था. अब इंटरनल रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा और ऑक्सीजन एंटर होगा, फाइनली ऑक्सीजन एंटर होगा टिश्यू में, यानी कि सेल में एंटर होगा. नाउ ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मा भी रिस्पॉन्सिबल है और हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं. प्लाज्मा से ट्रांसपोर्टेशन नेग्लिजिबल है. ओनली 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा एंड 97%, that is bulk of the oxygen, is transported with the help of hemoglobin present in RBC. ओके, अभी हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है उसके बारे में यहां पे मैंने इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन किया है. हीमोग्लोबिन is a red color pigment, is a red color respiratory pigment present in our RBC. हमारे ब्लड की जो रेडनेस होती है वो हीमोग्लोबिन के वजह से होती है. अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन यू माइट हैव सीन कि कभी कभी कुछ लोगों का ब्लड थोड़ा डीम रेड होता है, फेंट होता है. दैट मीन्स दे हैव लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड. अगर ब्लड में ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो वो ब्लड थोड़ा ज्यादा रेड होगा, ज्यादा डार्क रेड होगा. तो हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना अच्छा है, बिकॉज हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा एफिशिएंटली होगा
कुछ लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है. द कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन इज लेस इन द ब्लड, द कंडीशन इज कॉल्ड एज एनीमिया. बहुत से लोग एनीमिक होते हैं. दे हैव लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड. ओके, तो हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन है. बच्चों, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन में फेरस प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन में 4 फेरस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. ये हीमोग्लोबिन में जो फेरस है, ये फेरस कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ. वही ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है, जो अल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर कैपिलरी में गया है. सो दिस ऑक्सीजन कंबाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन. 1 molecule of hemoglobin can accept 4 molecule of oxygen and it makes oxyhemoglobin. यानी ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा HbO2. ऑब्वियसली 4O2 होगा. तो यहां पर फॉर्मेशन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का. कैपिलरीज में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. अब यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन यहां से ट्रांसपोर्ट होते हुए फाइनली कहां तक पहुंचेगी? ये पहुंचेगा हमारे टिश्यूज तक. ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे टिश्यूज तक पहुंचेगा. टिश्यूज तक पहुंचने के बाद ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन वापस से डिसोसिएट होगी. ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता है, ये वापस से डिसोसिएट होगी और डिसोसिएशन के बाद वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा. इसमें से जो ऑक्सीजन होगा वो टिश्यू के अंदर चला जाएगा और हीमोग्लोबिन विल रिमेन आउटसाइड इन द ब्लड. Now, this is how the oxyhemoglobin का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीहीमोग्लोबिन से वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा. रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. यहां पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा और टिश्यू के पास वापस से ऑक्सीहीमोग्लोबिन स्प्लिट होके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होता है. अभी इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. Now in relation to the transportation of oxygen, just now we have seen the transportation of oxygen. In relation to the transportation of oxygen, now we have to see the degree of saturation of hemoglobin with oxygen. Degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon oxygen tension, that is partial pressure of oxygen. As we know, partial pressure of oxygen is different at the different region in the respiratory system. Last time we have seen, in the previous lecture we have seen the partial pressure of oxygen in the alveoli when we inhale the gas, when we take the air into the lungs, is 104 mmHg, whereas the partial pressure of oxygen in the capillaries present around the alveoli is only 40 mmHg. Now, on the basis of transportation of oxygen, we have to see the degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the oxygen tension, that is partial pressure of oxygen. The first point is 100% saturation is rare. मतलब सारी की सारी हीमोग्लोबिन में पूरा के पूरा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऐसा होना मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है. तो 100% saturation is rare. The second point is maximum saturation of 95 to 97%. मैक्सिमम सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन के पास मैक्सिमम ऑक्सीजन होगा, मैक्सिमम सैचुरेशन होगा. इसकी पॉसिबिलिटी मतलब कितना हो सकता है? 95 टू 97. 100% तो होने से रहा. ये कब होगा? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the alveoli, that is the air we inhale, is 100 mmHg. मैक्सिमम 104 हो सकता है, लेकिन अगर 100 mmHg कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का अल्वियोलाई में, जो गैस हमने इनहेल किया है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में 95 टू 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगी ऑक्सीजन से. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. यहां पे 100 mmHg है तो 95 टू 97% सैचुरेशन हो रहा है, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो with the decrease in the partial pressure of oxygen, degree of saturation also decrease. Obviously, अगर आने वाली गैस में ऑक्सीजन कम होगा तो जो सैचुरेशन की लिमिट होगी, जो सैचुरेशन की चांसेस होंगे, वो भी कम होते जाएंगे. और सैचुरेशन के चांस कम होने के साथ डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन का चांस इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का चांस इंक्रीज हो जाएगा. यानी हमारे ब्लड में पहले से हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है उसके डिसोसिएशन के चांस बढ़ जाएंगे. कब बढ़ेंगे? अगर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कम होगा. सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब कम होगा? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
कम होता है तो ऐसे कंडीशन में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एट 30 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 mmHg है तो ऐसे सिचुएशन में 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन. 50% सैचुरेशन ही रहेगा, 50% डिसोसिएट होके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन oxyhemoglobin saturation, relationship between oxyhemoglobin saturation with oxygen tension, that is partial pressure of oxygen. इन दोनों का जो रिलेशनशिप है यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रेशर है, ये जो टेंशन है, इसका जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. आपकी टेक्स्ट बुक में इसका एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ के थ्रू वो एक्सप्लेन किया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है. रिमेंबर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन वर्सेस टेंशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. नाउ अब ये जो कर्व होता है यानी डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मॉइड शेप कर्व बनता है. सिग्मॉइड, मोर और लेस एस शेप कर्व बनता है. एंड दिस सिग्मॉइड शेप कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा कब? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा तो ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा. इंक्रीज, ये पॉइंट अलग हो गया. उसके बाद ये 3 पॉइंट देखो आप. इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का नहीं, पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज हो रहा है, या राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या फिर राइज इन DPG. दिस DPG स्टैंड्स फॉर 2,3-diphosphoGlycerate. This 2,3-diphosphoGlycerate is formed in RBC during glycolysis, that is during breakdown of glucose. तो अगर आरबीसी में डीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, तो ये तीनों सिचुएशन में क्या होगा? लोअर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है. Once again, increase in partial pressure of carbon dioxide, increase in temperature और rise in DPG level RBC में अगर ये increase होगा तो it lowers the affinity of hemoglobin for oxygen. ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होने की जो probability है, जो चांसेस हैं, वो comparatively कम हो जाएंगे. Now the next point is, so just now we have seen about the oxyhemoglobin dissociation curve. On the basis of the same curve, we have to study the Bohr's effect. Shifting of oxyhemoglobin dissociation curve to change in partial pressure of carbon dioxide in blood. What is Bohr's effect? It is the shifting of oxyhemoglobin dissociation curve. Oxyhemoglobin dissociation curve जो sigmoid shape curve था, वो कर्व शिफ्ट हो जाता है. क्यों शिफ्ट होता है? ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर चेंज होगा तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ये कर्व भी चेंज होगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट. द सेकेंड वन इज हाल्डेन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज हाल्डेन इफेक्ट? ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शन इज एसिड. ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब कंबाइंड होता है तो इट इज फंक्शनिंग लाइक एसिड. और एसिड फंक्शन करने की वजह से इट डिक्रीज द पीएच ऑफ ब्लड. ब्लड का पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज जब ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच जो है वो कम हो जाएगा. और ब्लड का पीएच कम होने से, ब्लड का पीएच क्यों कम होता है? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. HCO3 changes into water and carbon dioxide. That is
Now HCO3 changes into water and that is this HCO3 changes into water and carbon dioxide. ये HCO3 that is bicarbonate ion. This bicarbonate ion splits into water and carbon dioxide. ये बाइकार्बोनेट आयन कहां से आता है, वाटर और CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है. So this is called as Haldane effect. Once again, Haldane's effect, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शन इज एसिड. जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइंड होता है वो एसिड की तरह फंक्शन करेगा. ब्लड का पीएच कम होगा, ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो स्प्लिट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. दैट इज कॉल्ड एज हाल्डेन इफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अल्वियोलाई में जब हम इंस्पायर करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है. एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ऑक्सीजन कंबाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द रिवर्स कंडीशन इज गिवन. टिश्यू में क्या होता है, ये अल्वियोलाई में होता है, राइट. टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा बिकॉज वहां पे CO2 का प्रोडक्शन होगा, राइट. तो ऐसे में क्या होगा, हीमोग्लोबिन डज नॉट होल्ड मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन अब ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर सकता है. यहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा और यहां पे स्प्लिट होगा. इट रिलीज ऑक्सीजन फॉर डिफ्यूजन इनटू द टिश्यू. ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन टिश्यू में एंटर होगा. टिश्यू में एंटर होने के बाद वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा. तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Apart from this, the next point which is given in your textbook is about carbon monoxide poisoning. What is carbon monoxide poisoning? बच्चों, carbon monoxide is one of the pollutant you can say which is oftenly found in the environment. आपने पढ़ा है कि अलग अलग रीजंस हैं, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रीज हैं और अलग अलग रीजन से जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर लें, द गैस विच वी इनहेलिंग, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इनहेल कर लिया तो क्या होगा. रिमेंबर, देखो ये अल्वियोलाई थी, ये हमारा अल्वियोलाई था. इसमें जो एयर एंटर हो रहा था उसमें ऑक्सीजन था. ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होता था, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होता था. नो हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नो डाउट हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन के लिए उसके पास अट्रैक्शन है. लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ओकेजनली पोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर एंटर हो सकता है. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अल्वियोलाई में एंटर हो गया तो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि किसको एक्सेप्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा. सी व्हाट इज रिटन हियर, hemoglobin has affinity for carbon monoxide 250 times more than oxygen. यानी हीमोग्लोबिन यूजुअली तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर हुआ तो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को भाव नहीं देगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि किसको एक्सेप्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा. नो हीमोग्लोबिन कंबाइंड्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस affinity for carbon monoxide is 250 times more in comparison with oxygen. यानी ऑक्सीजन के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. And the second thing is when hemoglobin combined with carbon monoxide, it makes highly stable compound called as कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था और हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. ये अनस्टेबल कंपाउंड था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल कंपाउंड था और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज हाईली स्टेबल कंपाउंड. अब ये स्टेबल कंपाउंड बन गया. स्टेबल कंपाउंड बनने की वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में आरबीसी
आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ अब कौन प्रेजेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रिड्यूस होते जाएगी। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन सफिशिएंट है, लेकिन हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की जगह ही नहीं है, बिकॉज जो भी जगह थी उस जगह को किसने ब्लॉक कर दिया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसे में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन के पास फ्री स्पेस नहीं होगी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। जो स्पेस थी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने की, वो सभी स्पेस पे ये जाकर बैठा है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसने स्टेबल कंपाउंड बना लिया है। स्टेबल कंपाउंड बनने की वजह से वो आसानी से डिसोसिएट भी नहीं हो सकते। तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब हम इनहेल करेंगे, हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन तो अंदर जाएगा, लेकिन वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड नहीं हो पाएगा। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली टिश्यू एंड सेल्स have to face deficiency of oxygen। हमारी सेल्स में, हमारे टिश्यूज में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऐसे में बॉडी को ऑक्सीजन डिफिशियंसी के प्रॉब्लम और उसके सिम्टम्स फेस करने पड़ेंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। Now in the internal respiration, after the transportation of oxygen, now the next part is transportation of carbon dioxide. As you know, transportation of carbon dioxide will obviously be from the side of tissue to the blood. टिश्यू में जो CO2 फॉर्म्ड होता है, वो CO2 टिश्यू से निकल के ब्लड में जाता है और ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए वो अल्वियोलाई तक आता है। That is, we have to study here in transportation of carbon dioxide. Now first of all, carbon dioxide is readily soluble in water. आसानी से पानी में soluble हो जाता है, dissolve हो जाता है। Now transportation of carbon dioxide is done with the help of either RBC or plasma. या तो RBC उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो प्लाज्मा के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। अब ट्रांसपोर्टेशन के तीन अलग अलग मेथड्स हैं, तीन अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट फॉर्म बाय प्लाज्मा इन सोल्यूबल फॉर्म। प्लाज्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर सोल्यूबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और ये ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है? जस्ट 7%। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन 70% होता है। यानी मैक्सिमम बल्क अमाउंट में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। आरबीसी वी हैव स्टडीड अर्लियर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 23% पॉसिबिलिटी है, राइट। अब इसको एलाबोरेट करना है, ये तीनों पॉइंट को हमको एक एक करके समझना है, जिसमें से स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, दैट इज इन द सोल्यूबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ये 7% ट्रांसपोर्टेशन होता है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होके बाहर निकलता है, ब्लड में एंटर होता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा में 90% या 90% से भी ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। तो जो वाटर के साथ कंबाइंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में प्लाज्मा में जो वाटर है उसके साथ कंबाइंड होगा CO2, और कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट वे हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन। नाउ द सेकेंड मेथड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड मेथड इज विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो दिस पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो।
ये मैं आपको पहले बता देता हूं इस वीडियो में कि ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ आरबीसी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन विद द हेल्प ऑफ आरबीसी एंड एज सेड अर्लियर दिस ट्रांसपोर्टेशन इज 23%. नाउ व्हाट हैपन, हमारे टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होके ब्लड में एंटर होता है और ब्लड में आने के बाद ये ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. उस प्रोटीन का जो अमाइनो ग्रुप है, वंस अगेन ये CO2 जब ब्लड में एंटर हुआ, टिश्यू से ब्लड में एंटर हुआ, ये ब्लड से आरबीसी में गया. आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, उसका जो अमाइनो ग्रुप है उस अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइंड होगा. यानी इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म HbCO2. HbCO2 का पूरा नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. तो इससे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है. तो जहां से CO2 रिलीज होता है वहां पे ब्लड में वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है. नाउ दिस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये CO2 को अपने साथ तो रखता है, हीमोग्लोबिन कंबाइंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इनके बीच में लूज बॉन्ड होती है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्टेबल कंपाउंड का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन नहीं होता है. अब ये जो लूज बॉन्ड बना है, अब क्या होगा कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होते हुए, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए कहां तक आता है, अल्वियोलार के, अल्वियोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, अल्वियोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड आता है उसमें प्रेजेंट है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Now what happened in the alveolar region? In the alveolar region, this carbaminohemoglobin readily decompose. वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो डिकम्पोज होगा. और उसका रीजन क्या है? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन स्प्लिट हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा. और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जब डिकम्पोज होगा तो वापस से किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का. अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर वापस से अल्वियोलाई में एंटर हो जाएगा. हीमोग्लोबिन विल रिमेन इन द ब्लड कैपिलरीज एंड दिस हीमोग्लोबिन is further used for the transportation of oxygen and carbon dioxide. So this is the third method how the transportation is done, how the transportation of carbon dioxide is done. ये वाला जो मेथड है with the help of bicarbonate, sodium and potassium bicarbonate, इससे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, how the transportation is done with the help of bicarbonate, this part we will see in the next lecture. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में out of the three method, मैंने method number 1 that is with the help of plasma and method number 3 with the help of RBC, ये 2 पॉइंट कवर किया है. थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे. ओके.